अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नोबी रिएक्शन। उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगर मिंगर लोग ठीक होंगे। तो यार कैसे हो तुम सब? आज यार काफ़ी एक दर्द भरी वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसा कि जानते हो, लिबरेशन वार हुई थी जिसे फ्रीडम फाइटर्स और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान हुई थी। तो यार मार्केट में दो किस्म की बातें होती हैं, एक बांग्लादेश का भी मौक़िफ़ है और एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। बांग्लादेश का मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे जो औरतें हैं उनके साथ ज़्यादती की थी, और पाकिस्तानी मौक़िफ़ ये है कि हमने इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं किया, ये सिंपति गेन करना चाह रही हैं। तो इसके बारे में मैं एंड पे रिव्यू में बताऊंगा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पहले देखते गए कि एक रेप विक्टिम है जो 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने किया था, उसका एक इंटरव्यू है, तो वो देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अमेजिंग और इंटरटेनिंग रिएक्शन जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। हियर वी गो। We Americans are aware of what's happening in Cambodia and South Vietnam because this country has a big stake there. But Bangladesh is a different case. There is no major American involvement or commitment there, nothing which approaches the needs of that young, impoverished nation. And so the memory of what happened there may already be growing dim in many of us. But what did happen there will never be forgotten by the people of Bangladesh, especially the women. It was in villages like this that the Bengali liberation struggle caught fire, and it was in villages like this that the Pakistan Army took its revenge. The villagers still speak of it, the men telling their stories of fighting, the children telling their stories of running and hiding. It is the women who are silent, women like Saira. She is 16 years old, a widow, and pregnant with a child of a Pakistani soldier. Ooh. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. She says that her husband was in the Mukti Bahini. He was a commander of the force, in the village. And this army people were looking for him, and they had broken into her house to take him away, actually. And when they were dragging him out of the house, she started screaming and protesting and crying, trying to hold back her husband. Okay. And one of them turned back and raped her in front of her husband, Ooh. who was forced to sit and watch with guns pointed at him. And later on she Like says many that women she who were didn't raped by Pakistani soldiers, Saira is in disgrace among her people. Her parents take care of her, but they are certain that no man will ever marry her. Since January, many of the women ravaged by the Pakistani troops have been living in this house. They're being cared for by a government-sponsored women's rehabilitation group. Almost all of the women here are pregnant. Ooh. They are very young, some only 13 यार ये years तो old. 16-17 साल In की a है। few cases, their parents have abandoned them. In others, their husbands have rejected them. ओए। About 70 have had abortions, and those who have had their babies plan to give them away. Most of the girls here were held prisoner by the Pakistani troops in the army barracks. For weeks, each day and each night, they were forced to submit to whatever the soldiers demanded. This is Rushanara, 14 years old and 7 months pregnant. She was abducted from her home in Dhaka and taken to the army barracks where she remained for 3 months. She says there were nights when as many as 30 soldiers forced themselves on her. Sheikh Mujibur Rahman has said that these women are heroines. But politics, the war, and even the liberation are not really the concerns of these women. Exactly. They are the innocent क्या फिर victims इन्होंने of बांग्लादेश की war, गवर्नमेंट ने and the दिया? children they bear will share in their grief. This is Liz Trotta, NBC News, in Dhaka, Bangladesh. Many of the soldiers who attacked those women are among the 100,000 Pakistani prisoners of war held by India. India has offered Pakistan what it calls unconditional talks
मतलब यार मैं स्पीचलेस हूँ इसके बारे में, मतलब क्या बात कर सकते हैं कि मतलब मैं इसके मतलब एक इंसान कोई आर्गूमेंट नहीं दे सकता। और ये भारत नहीं कह रहा, ये एक अमेरिका कह रहा है और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इस न्यूज़ को कवर कर रही है। तो आपको बताऊं ना, हमें जो बचपन में बताया गया हुआ कि बांग्लादेश क्यों आज़ाद हुआ, कि वो कह रहे थे कि बंगाली ज़बान राइज की जाए, तो पाकिस्तान चाह रहा था कि उर्दू ज़बान। तो अगर इस फैक्ट को देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते। सिंधी में रहने वाले सिंधी बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते। बलूचिस्तान में रहने वाले बलोची बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते। केपीके में रहने वाले पश्तो बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते। ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज वाला जो उनका आर्गूमेंट था ना, जो मार्केट में उन्होंने फेंका हुआ था, वो तो सीरीज से रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड बात आते हैं फिर बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहले मैं शायद कहता था कि नहीं यार ये झूठा है, लेकिन फिर जब मैंने वीडियोस देखने लग पड़ी और अब ये देखी है, तो ये मेरे पॉइंट ये मतलब स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने एक इमरान खान का इंटरव्यू सुना जिसमें वो बता रहे थे कि मेरा एक बांग्लादेशी दोस्त है, क्रिकेटर ही था, तो मैं वो बता रहा था कि 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ये किया। तो मैं उससे कह रहा था कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहता उसने मुझे प्रूफ दिखाए और फिर मुझे यकीन हुआ कि 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश की औरतों के और बांग्लादेश के लोगों के साथ कितना कोई कत्ल वगारत की थी। तो यार सीधी सी बात है कि इस्लाम आपको ये चीज़ नहीं इजाज़त देता। पाकिस्तान बाद में है, पहले इस्लाम है। तो इस्लाम ने आपको इस तरह की कोई इजाज़त नहीं दी हुई कि अगर मुल्क का दिफा करना हो तो आप एक लड़की का रेप कर दो। ये तो मतलब इस्लाम तो ये सिखाता ही नहीं। ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काफर की ना जो बेटी थी ना, उसके ऊपर अपना जो वो पहनी हुई थी ना चादर, वो आके उसके सर पे रखी और उसको मतलब प्रोटेक्शन दी। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक लड़की का रेप कर दें जैसे एक टू सेव द कंट्री? इस तरह की चीज़ें नहीं होती। या ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तो बिल्कुल देख के परेशान हो गया हूँ। और मतलब यार उन लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। वो एक लीडर था, ठीक है, उसने अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश की, तो एक मतलब एक सोल्जर आया और उसने उसके हस्बैंड के सामने रेप कर दिया। सेकेंडली एक वो दूसरी थी, कितने ज़्यादा 16-17 साल की वाइस थी, तो उनके साथ रेप किया गया। तो लोगों ने जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने उनको तलाक दे दी। कईयों ने अबॉर्शन करवा लिया, जिन्होंने बच्चा रखा उन्होंने फिर बच्चा किसी और को दे दिया। कोई दूसरा मर्द उनसे शादी करने के लिए मतलब राज़ी नहीं थे। तो इतनी मतलब उन्होंने तकलीफ़ें सही हैं। आई थिंक कि ये जो बांग्लादेश का वजूद आया, ये बांग्लादेश की औरतों की वजह से आया, क्योंकि इतनी उन्होंने कुर्बानी दी हैं। मर्दों ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी हैं। वो फ्रीडम फाइटर, आप बहुत सी सिटीज़ में जाओ, वहाँ आपको एक सिविल लिबरेशन वार की एक मोनूमेंट देखने को मिलता है, उनको एक ट्रिब्यूट देता है। तो मेरा तो यही है कि बांग्लादेश की औरतों ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। और उन्होंने सही बताया था कि ये पॉलिटिक्स वार्स में मतलब इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप मुझे बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया था, या बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में होता है, यूज़ किया छापर की तरह और फेंक दिया? तो क्या इनके साथ भी ऐसे ही हुआ? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर और कोई इस तरह की कोई वीडियो है तो वो भी मुझे रिकमेंड करना। तो यार मतलब फुल ये कोई जस्टिफाई नहीं हो सकती ये चीज़, बहुत ही मतलब इसको कंडेम करना चाहिए। यार मेरी भी थोड़ी लिमिट्स हैं, मैं भी इतनी ओपनली बात नहीं कर सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।